1 year Bible reading plan. Acts 23 chapter 12 verse से 35 verse, Job 40 chapter 41 chapter 42 chapter. एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान। प्रेरितों के काम 23 अध्याय 12 वचन से 35 वचन। अय्यूब की पुस्तक 40 अध्याय 41 अध्याय 42 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। एक्ट्स 23 चैप्टर 12 वर्स से 35 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। And when it was day, certain of the Jews banded together and bound themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul. And they were more than 40 which had made this conspiracy. And they came to the chief priests and elders and said, We have bound ourselves under a great curse, that we will eat nothing until we have slain Paul. Now therefore ye with the council signify to the chief captain that he bring him down unto you tomorrow, as though ye would inquire something more perfectly concerning him, and we, or ever he come near, are ready to kill him. And when Paul's sister's son heard of their lying in wait, he went and entered into the castle and told Paul. Then Paul called one of the centurions unto him and said, Bring this young man unto the chief captain, for he hath a certain thing to tell him. So he took him and brought him to the chief captain and said, Paul the prisoner called me unto him and prayed me to bring this young man unto thee, who hath something to say unto thee. Then the chief captain took him by the hand and went with him aside privately and asked him, What is that thou hast to tell me? And he said, The Jews have agreed to desire thee that thou wouldest bring down Paul tomorrow into the council, as though they would inquire somewhat of him more perfectly. But do not thou yield unto them, for there lie in wait for him of them more than 40 men, which have bound themselves with an oath that they will neither eat nor drink till they have killed him. And now are they ready, looking for a promise from thee. So the chief captain then let the young man depart and charged him, See, thou tell no man that thou hast shewed these things to me. And he called unto him 2 centurions, saying, Make ready 200 soldiers to go to Caesarea, and horsemen 60 and spear men 200 at the third hour of the night, and provide them beasts that they may set Paul on and bring him safe unto Felix the governor. And he wrote a letter after this manner: Claudius Lysias unto the most excellent governor, Felix sendeth greeting. This man was taken of the Jews, and should have been killed of them. Then came I with an army, and rescued him, having understood that he was a Roman. And when I would have known the cause wherefore they accused him, I brought him forth into their council, whom I perceived to be accused of questions of their law, but to have nothing laid to his charge worthy of death or of bonds.
And when it was told me how that the Jews laid wait for the man, I sent straightway to thee, and gave commandment to his accusers also to say before thee what they had against him. Farewell. Then the soldiers, as it was commanded them, took Paul and brought him by night to Antipatris. On the morrow they left the horsemen to go with him, and returned to the castle, who, when they came to Caesarea and delivered the epistle to the governor, presented Paul also before him. And when the governor had read the letter, he asked of what province he was, and when he understood that he was of Cilicia, I will hear thee, said he, when thine accusers are also come. And he commanded him to be kept in Herod's judgment hall. एक्ट्स प्रेरितों के काम 23 अध्याय 12 वचन से 35 वचन पढ़ेंगे। पौलुस की हत्या का षड्यंत्र। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक खाएं या पिएं तो हम पर धिक्कार। जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई थी वे 40 जन से अधिक थे। उन्होंने प्रधान याजकों और पुरनियों के पास जाकर कहा, हमने यह ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक यदि कुछ चखे भी तो हम पर धिक्कार है। इसलिए अब महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक से जांच करना चाहते हो, और हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, यह उससे कुछ कहना चाहता है। इसलिए उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे बुलाकर विनती की कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, इसे उसके पास ले जा। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर अलग ले जाकर पूछा, तो मुझसे क्या कहना चाहता है? उसने कहा, यहूदियों ने षड्यंत्र रचा है कि तुझसे विनती करे कि कल पौलुस को महासभा में लाए, मानो वे और ठीक से उसकी जांच करना चाहते हैं, परंतु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य उसके घात में है, जिन्होंने यह ठान लिया है कि जब तक वे पौलुस को मार न डाले तब तक न खाएंगे और न पिएंगे, और अब वे तैयार हैं और तेरे वचन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब पलटन के सरदार ने जवान को यह आज्ञा देकर विदा किया, किसी से न कहना कि तूने मुझको ये बातें बताई है। पौलुस को फेलिक्स के पास भेजा जाना। 23 वचन से आगे। तब उसने 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सैनिक 70 सवार और 200 भलाइत पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दे। उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी, महामहिम फेलिक्स हाकिम को क्लौदियोस लूसियास का नमस्कार। इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि रोमी है तो पलटन लेकर छुड़ा लाया। मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसलिए उसे उनकी महासभा में ले गया। तब मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्य उसमें कोई दोष नहीं। जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं,
तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया और मुद्दइयों को भी आज्ञा दी कि तेरे सामने उस पर नालिश करे। अतः जैसे सैनिकों को आज्ञा दी गई थी, वैसे ही वे पौलुस को लेकर रातों रात अंतिपत्रिस में आए। दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप गढ़ को लौटे। उन्होंने कैसरिया पहुंचकर हकीम को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उसके सामने खड़ा किया। उसने चिट्ठी पढ़कर पूछा, यह किस प्रांत का है? और जब जान लिया कि किलिकिया का है, तो उससे कहा, जब तेरे मुद्दई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूँगा। और उसने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में रखने की आज्ञा दी। जोब 40 चैप्टर, 41 चैप्टर, 42 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। जोब humbles to himself to God. First verse. Moreover the Lord answered Job and said, Shall he that contendeth with the Almighty instruct him? He that reproveth God, let him answer it. Then Job answered the Lord and said, Behold, I am vile, and what shall I answer thee? I will lay mine hand upon my mouth. Once have I spoken, but I will not answer. Yea, twice, but I will proceed no further. Then answered the Lord unto Job out of the whirlwind and said, Gird up thy loins now like a man. I will demand of thee, and declare thou not thou unto me. Wilt thou also disannul my judgment? Wilt thou condemn me, that thou mayest be righteous? Hast thou an arm like God, or canst thou thunder with a voice like him? Deck thyself now with a majesty and excellency, array thyself with glory and beauty. And array thyself with glory and beauty. Cast abroad the rage of thy wrath, and behold every one that is proud, and abase him. Look on every one that is proud, and bring him low, and tread down the wicked in their place. Hide them in the dust together, and bind their faces in secret. Then will I also confess unto thee that thine own right hand can save thee. Behold, now Behemoth, which I made with thee, he eateth grass as an ox. Lo, now his strength is in his loins, and his force is in the navel of his belly. He moveth his tail like a cedar. The sinews of his stones are wrapped together. His bones are as strong pieces of brass. His bones are like bars of iron. He is the chief of the ways of God. He that made him can make his sword to approach unto him. Surely the mountains bring him forth food, where all the beasts of the field play. He lieth under the shady trees in the covert of the reed and fence. The shady trees cover him with their shadow. The willows of the brook compass him about. Behold, he drinketh up a river and hasteth not. He trusteth that he can draw up Jordan into his mouth. He taketh it with his eyes. His nose pierceth through snares. Chapter 41 of God's great power in the Leviathan. First verse say, Canst thou draw out Leviathan with an hook, or his tongue with a cord which thou lettest down? Canst thou put an hook into his nose, or bore his jaw through with a thorn? Will he make any supplications unto thee? Will he speak soft words unto thee? Will he make a covenant with thee? Wilt thou take him for a servant forever? Wilt thou play with him as with a bird? Or wilt thou bind him for thy maidens? Shall the companions make a banquet of him? Shall they part him
among the merchants? Canst thou fill his skin with barbed irons, or his head with fish spears? Lay thine hand upon him. Remember the battle, do no more. Behold, the hope of him is in vain. Shall not one be cast down even at the sight of him? None is so fierce that dare stir him up. Who then is able to stand before me? Who hath prevented me that I should repay him? Whatsoever is under the whole heaven is mine. I will not conceal his parts, nor his power, nor his comely proportion. Who can discover the face of his garment, or who can come to him with his double bridle? Who can open the doors of his face? His teeth are terrible round about, his scales are his pride, shut up together as with a close seal. One is so near to another that no air can come between them. They are joined one to another, they stick together that they cannot be sundered. By his neesings a light doth shine, and his eyes are like the eyelids of the morning. Out of his mouth go burning lamps, and sparks of fire leap out. Out of his nostrils goeth smoke, as out of a seething pot or cauldron. His breath kindleth coals, and a flame goeth out of his mouth. In his neck remaineth strength, and sorrow is turned into joy before him. The flakes of his flesh are joined together, they are firm in themselves, they cannot be moved. His heart is as firm as a stone, yea, as hard as a piece of the nether millstone. When he raiseth up himself, the mighty are afraid. By reason of breakings they purify themselves. The sword of him that layeth at him cannot hold the spear, the dart, nor the habergeon. He esteemeth iron as straw, and brass as rotten wood. The arrow cannot make him flee. Flint stones are turned with him into stubble. Darts are counted as stubble. He laugheth at the shaking of a spear. Sharp stones are under him. He spreadeth sharp pointed things upon the mire. He maketh the deep to boil like a pot. He maketh the sea like a pot of ointment. He maketh a path to shine after him. One would think the deep to be hoary. Upon earth there is not his like, who is made without fear. He beholdeth all high things. He is a king over all the children of pride. Chapter 42. God accepts Job and doubles his blessings. First verse. Then Job answered the Lord and said, I know that thou canst do everything, and that no thought can be withholden from thee. Who is he that hideth counsel without knowledge? Therefore have I uttered that I understood not things too wonderful for me, which I knew not. Hear, I beseech thee, and I will speak. I will demand of thee, and declare thou unto me. I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth thee. Wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes. And it was so that after the Lord had spoken these words unto Job, the Lord said to Eliphaz the Temanite, My wrath is kindled against thee and against thy two friends, for ye have not spoken of me the thing that is right, as my servant Job hath. Therefore take unto you now 7 bullocks and 7 rams, and go to my servant Job, and offer up for yourselves a burnt offering and
My servant Job shall pray for you. For him will I accept, lest I deal with you after your folly, in that ye have not spoken of me the thing which is right, like my servant Job. So Eliphaz the Temanite, and Bildad the Shuhite, and Zophar and Namathite went and did according as the Lord commanded them. The Lord also accepted Job, and the Lord turned the captivity of Job. When he prayed for his friends, also the Lord gave Job twice as much as he had before. Then came there unto him all his brethren, and all his sisters, and all they that had been of his acquaintance before, and did eat bread with him in his house, and they bemoaned him, and comforted him over all the evil that the Lord had brought upon him. Every man also gave him a piece of money, and every one an earring of gold. So the Lord blessed the later end of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep, and 6,000 camels, and 1,000 yoke of oxen, and 1,000 she asses. He had also 7 sons and 3 daughters, and he called the name of the first Jemimah, and the name of the second Keziah, and the name of the third Kiren Hapok. And in all the land were no woman found so fair as the daughters of Job, and their father gave them inheritance among their brethren. After this lived Job 140 years, and saw his sons and his sons' sons, even for generations. So Job died, being old and full of days. अय्यूब की पुस्तक 40, 41 और 42 अध्याय पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 40 अध्याय। फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? जो परमेश्वर से विवाद करता है वह उसका उत्तर दे। अय्यूब का उत्तर 3 वचन से आगे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूँ। एक बार तो मैं कह चुका, परंतु और कुछ न कहूँगा। हाँ, 2 बार भी मैं कह चुका, परंतु अब कुछ और आगे न बढ़ूँगा। परमेश्वर का अय्यूब को उत्तर 6 वचन से आगे। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उस किसी बोली से गरज सकता है? अब अपने को महिमा और प्रताप से सवार और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन ले। अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे और एक एक घमंडी को देखते ही उसे नीचा कर। हर एक घमंडी को देखकर झुका दे और दुष्ट लोगों को जहाँ खड़े हो वहाँ से गिरा दे। उनको एक संग मिट्टी में मिला दे और उस गुप्त स्थान में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे विषय में मान लूँगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। उस जल गज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है, वह बैल के समान घास खाता है। देख उसकी कटी में बल है और उसके पेट के पट्टों में उसकी सामर्थ्य रहती है। वह अपनी पूंछ को देवदार के समान हिलाता है। उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई है। उसकी हड्डियां मानो पीतल की नलियां हैं। उसकी पसलियां मानो लोहे के बेंडे हैं। वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है। जो उसका सृजनहार हो उसके निकट तलवार लेकर आए। निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है, जहाँ और सब वन पशु कलोल करते हैं। वह कमल के पौधों के नीचे रहता और नरकटों की आड़ में और कीच पर लेटा करता है। कमल के पौधे उस पर छाया करते हैं। वह नाले के बेंत के वृक्षों से घिरा रहता है। चाहे नदी की बाढ़ भी हो तो भी वह न घबराएगा। चाहे यरदन भी बढ़कर उसके मुंह तक आए, परंतु वह निर्भय रहेगा। जब वह चौकस हो तब क्या कोई उसको पकड़ सकेगा या फंदे लगाकर उसको नाथ सकेगा?
41 अध्याय पहले वचन से। फिर क्या तू लिबियातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है, या डोरी से उसके जीभ दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता, या उसका जबड़ा कील से बेध सकता है? क्या वह तुझसे बहुत गिड़गिड़ाएगा? क्या वह तुझसे मीठी बातें बोलेगा? क्या वह तुझसे वाचा बांधेगा कि वह सदा तेरा दास रहे? क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया से, या अपनी लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा? क्या मछुओं के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे? क्या वह उसे व्यापारियों में बांट देगा? क्या तो उसका चमड़ा भाले से या उसका सिर मछुए के त्रिशूलों के से बेध सकता है? तो उस पर अपना हाथ ही रखे तो लड़ाई को कभी न भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा न करेगा। देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है, उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए। फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके? किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। मैं उसके अंगों के विषय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट को की शोभा के विषय चुप न रहूँगा। उसके ऊपर के पहरावे को कौन उतार सकता है? उसके दांतों की दोनों पांतियों के अर्थात जबड़ों के बीच कौन आएगा? उसके मुख के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है? उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं, उसके छिलकों की रेखाएं घमंड का कारण है। वे मानो मुहर बंद किए हुए हैं। वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनमें वायु भी नहीं घुस सकती। वे आपस में मिलते हुए और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। फिर उसके छींकने से उजियाला चमक उठता है और उसकी आंखें भोर की पलकों के समान है। उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती है। उसके नथुनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसा खौलती हुई हांडी, और जलते हुए नरकटों से उसकी सांस से कोयले सुलगते और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। उसकी गर्दन में सामर्थ्य बनी रहती है और उसके सामने डर नाचता रहता है। उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता। उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, वरन चक्की के निचले पाट के समान दृढ़ है। जब वह उठने लगता है तब सामर्थ्य भी डर जाते हैं और डर के मारे उनकी सुध बुध लोप हो जाती है। यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ न बन पड़ेगा, और न भाले और न बर्छी और न तीर से। वह लोहे को पुआल सा और पीतल को सड़ी लकड़ी सा जानता है। वह तीर से भगाया नहीं जाता। गोफन के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं, लाठियाँ भी भूसे के समान गिनी जाती है। वह बर्छी के चलने पर हंसता है, उसके निचले भाग पैने ठीकरे के समान है। कीच पर मानो वह हेंगा फेरता है। वह गहरे जल को हंडे के समान मथता है, उसके कारण नील नदी मरहम की हांडी के समान होती है। वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है। गहरा जल मानो श्वेत दिखाई देने लगता है। धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है जो ऐसा निर्भय बनाया गया है। जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है। वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। अय्यूब का परमेश्वर को उत्तर 42 अध्याय पहले वचन से। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ।
घोर परीक्षा से अय्यूब की मुक्ति। 7 वचन से आगे, ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूँगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीपज, शूही बिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का केरेन्हपुक रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्ध अवस्था में दीर्घायु होकर मर गया। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 9 चैप्टर 1 वर्स से 9 वर्स, जोशुआ 11 चैप्टर। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 1 वचन से 9 वचन। यहोशुआ की पुस्तक 11 अध्याय। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को हम अपने व्यक्तिगत पर्सनल टाइम में पढ़ेंगे, और जब हम पर्सनल व्यक्तिगत समय में इसे पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमको इन वचनों के अंदर से जो कुछ भी प्रकाशन देगा, आने वाले भविष्य के विषय में हमको बताएगा, हमने उसके नोट्स बनाकर लिख लेना है, और परमेश्वर का ये वचन हमने अपने मनन में रखना है, ध्यान में रखना है, और उसके साथ भरे हुए रहना है। उसको छोड़ नहीं देना है, भूल नहीं जाना है, उसमें हम भर कर रहना है, याद रखना है हमने जो पढ़ा है उसके अंदर से परमेश्वर ने क्या बातें किया, हमने उसको पकड़ के रखना है अपने अंदर, विश्वास के साथ उसको पकड़ के रखना है। और फिर बाद में देखना, जब हमारे 2 साल के अंत आता है, ऐसा वचन हम पकड़े हुए चलते रहेंगे, तो 2 साल के अंत में परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर हम निखर कर आएंगे। और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर इस्तेमाल करता है। ये इस्तेमाल होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, ऐसा होने के लिए, तो हमने ऐसे अनुग्रह का निश्चित लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।